बंदिश गाती हूँ। ये बंदिश मैं 10 साल की थी तो मुझे राम खमाज ने एक बंदिश सिखाई थी, सखी सावरो गिरधर गोपाल। तो बंदिश की धुन में आपके सामने
सारी बातें एकदम आंखों के सामने आ जाएंगी। इसके बाद हमारे बीच में है विनी जी, और विनी जी की बिटिया भी यहाँ पर है। विनी जी गुरु जी के बहुत ही क्लोज दुश्मन से रहे हैं और आज के डेट में भातखंडे में संगीत की शिक्षा भी देते हैं। इससे पहले विनी जी अपनी आपके सामने प्रस्तुत करें अपने संगीत, मैं कुछ और मेमोरीज और कुछ और बातें आपसे ताज़ा करना चाहूँगा। जब फैमिली की बात होती है, गुरु जी बहुत ही फॉर्चुनेट रहे, नॉट ओनली अबाउट फैमिली, अबाउट एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीबडी। Such talented daughters, and of course, you know, son-in-law has to be so talented. So we have something from his eldest son-in-law, oldest son-in-law also, Abdesh Ji. He's written a nice poem, and let me tell you, it was written only yesterday. So it was so nice when I, you know, first read it, and I would like to recite it without taking any moment. The title is Shraddhanjali. एक श्रद्धांजलि उस महापुरुष को, एक श्रद्धांजलि उस महापुरुष को जिसकी रग में स्वर थे गूंजे। जीवन उनका निर्मल निर्झर, कैसे कोई उनको भूले। जीवन उनका निर्झर निर्मल, कैसे कोई उनको भूले। सात सुरों में रहे मगन वो, सात सुरों में रहे मगन वो, साथ में उनकी कोयल कूके। स्वर विहार में स्वर ही गूंजे, स्वर विहार में स्वर ही गूंजे, नहीं झुका वह मस्तक चाहे। हो बाधा या समय की शूलें, हो बाधा या समय की शूलें, मीठी वाणी मीठे स्वर, शब्द भी रस में घोल के बोले। हिले न स्वर कोई शब्द भाषा का, हिले न स्वर कोई शब्द भाषा का, हिंदी इंग्लिश लिखे न बोले, हिंदी इंग्लिश लिखे न बोले। स्वर विहार में यादें उनकी झांके लुकछुप, स्वर विहार में झांके उनकी यादें झांके लुकछुप, एहसास उनका जब भी कौन है। शतवर्षी जन्म दिवस पर आओ मिलकर करें यादों को टटोलें। बहुत ही अच्छी और सुंदर लाइनें उनकी तरफ से। Mother is talented, father is talented, yet son has to be talented. So let me introduce the oldest, grandchild of Guruji, Chirag. Chirag is an engineering graduate, and by art being in the genes, he decided to pursue his career in the field of art. He is currently writing and also doing some work in the field of arts. He is in Mumbai, and he has written something very interesting about the family. And he's 6 feet tall. And why I'm saying this, you will get to know once I start reading about what he's written. Mom is 5'4", Dad is 5'7". Mom is 5'4", Dad is 5'7", both from IIT. Architects, engineers, dentists, doctors. Architects, engineers, dentists, doctors. This was the family tree. This was the family tree. But one particular branch started to play its own tune. But one particular branch started to play its own tune, started to write its own history. How did I grow? How did I know? How did I grow? How did I know? Let's figure out this mystery. Music and words just seems to flow. Music and words just seems to flow. Its source yet unknown. But once you look closely, the seed is of the mystery. But once you look closely, the seed of this mystery has long before been sown. As it turns out, this is called history, had already been written before, and if it does manage to repair itself, then we all know what is in store. There are no memories, there are no moments to cherish. Does seem like such a shame. Different generation, different times. Different generations, different times, yet kind of the same. It would have been fun, grandfather, grandson discussing their work and play. It would have been fun, grandfather, grandson discussing their own work and play. So on this day, if I have one thing to say, it's thank you for the DNA. This is the Chirag Ratna side. So let's have a big round of applause. We also have a lot of people here, travel from different places. One of the person who's been associated with Sir Vihar since her childhood, a very close friend of Alka Didi and a very close member of Sir Vihar, we have got Archana Didi all the way from Delhi.
So I would want her to share a few words with us. Thank you so much. It's a real privilege to be here, Alka, and you know it. I told Alka I'm not coming, although I was already here in Lucknow. And she was so upset with me. She said, "Oh my God, how can you do this?" मुझे तो आना ही था. मेरा बचपन इसी मकान में गुजरा है. हमारा मकान पीछे था और ये था, पर अंकल की पर्सनालिटी ऐसी थी कि I think he should just draw us towards him. मेरे भी वो गुरु भी रहे हैं. मैं मैथ्स से बहुत डरती थी. मुझे मैथ्स इतनी बुरी लगती थी कि कुछ कहने को नहीं, और मैं इंतज़ार करती थी कि कब किसी तरीके से मैथ्स से पीछा छूटेगा. बट अंकल ने मुझे बहुत पढ़ाया मैथ, और स्लेट पे पढ़ाते थे. And I wonder why teachers don't teach their children या parents don't teach them on a slate, because it's so easy. तो हम लोग स्लेट और बत्ती लेकर के उनके पास पहुंचते थे. और मैं और अलका तो बहुत ब्राइट थी मैथ में, इसीलिए वो इंजीनियर बनी. मैं बहुत ख़राब थी, इसीलिए मैं कुछ और कर रही हूँ लाइफ में. आई चोज द इजी वे आउट. और पर आर्ट का अगर मैं आप इतने सारे लोगों को बात करते हुए सुन रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ इन्फ्लुएंस अंकल का ही होगा मेरे ऊपर भी, क्योंकि मैंने भी आर्ट को चूज़ किया और मैं एक फिल्म मेकर बन गई. बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने अंकल के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करी. मैं और अलका एक छोटी सी अंगीठी पे हम लोग खाना बनाया करते थे पीछे, और बहुत इंकरेज करते थे अंकल. एंड ही यूज्ड टू बी आवर फर्स्ट टेस्टर, एंड वी यूज्ड टू मेक इट. उसमें थोड़ी बहुत केरोसिन की स्मेल भी आती थी, पर वो हमेशा उसकी तारीफ करते थे. सो वन थिंग विच आई थिंक ही गेव अस वाज अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट. हम कुछ भी करें, कितनी भी गलतियाँ करें, वो हमेशा हमको मोटिवेट करते थे. मैं सिर्फ अपनी मेमोरी शेयर कर सकती हूँ. मैं 4 फुट 11 इंच 9 इंच की थी क्लास 10 तक, और अलका लंबी थी. और अंकल मुझे हमेशा कहते थे कि इन लोगों का साथ मत छोड़ना, लंबे लोगों के साथ रहोगी तो लंबी हो जाओगी. खुद 6 फुटर थे, तो मुझे लगता है कि अंकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें भी है कुछ, उनका उसमें भी कोई कंट्रीब्यूशन है कि मैं भी अल्टीमेटली 5'4" हो गई अलका के बराबर. एंड आई grew after class 10, so which is very difficult to believe, but it's a fact. एक और मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी कि मैंने भी बहुत खाने खाए हैं उसी डाइनिंग टेबल पे. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो मैंने अपने पिताजी से भी सीखी और अंकल से भी बहुत सीखी. एंड शेयरिंग वट एवर यू हैव. जब आ जाओ तो खाना खा लो. यू नो वट एवर इज, कितने फल उन्होंने काट के हम लोग को टेबल पे शेयर किए होंगे, और खूब डिस्कशंस किए. एंड ऑलवेज encouraging us to provoke. You know, he used to provoke us, and then he used to encourage us to debate. एक बस छोटा सा किस्सा और सुनाऊंगी जिसने मेरी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट किया. मैंने आपको बताया मैं मैथ्स में अच्छी नहीं थी. एक क्लास टेस्ट था और मुझे नहीं आता था. अलका मेरे बगल में बैठी थी और मैंने अलका से एक सम कॉपी किया. हम लोग को दोनों को 10 on 10 मिले. मैंने वैसे एक ही कॉपी किया था सीरियसली, लेकिन दोनों को 10 on 10 मिले. और हम लोग बहुत खुश, हम लोग घर आए और अंकल को मैंने दिखाया. मैंने कहा देखिए मुझे भी 10 on 10 मिले. उन्होंने कॉपी देखी तो पहले तो बोले कि तुमने अलका से कॉपी किया है. तो मैंने कहा कि हाँ. तो बोले कि तुमने भी वही गलती करी जो अलका ने करी है, और तुम दोनों वापस जाओगे और टीचर को बोलोगे कि उसने गलत चेक किया. तो उन्होंने टीचर को कैसे बोलेंगे कि उसने गलत चेक किया. तो उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग को जाके बोलना पड़ेगा कि ये देखो उसने तुम्हें गलत नंबर दिया. एंड वी बोथ हैड टू गो बैक, मुंह लटका करके. पहले तो बताना पड़ा कि हमने कॉपी करी, हमने चीटिंग करी, मुझे बोलना पड़ा. दूसरी बार टीचर को बोलना पड़ा कि आपने गलत चेकिंग कर दिया. मतलब आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन एटलीस्ट माय हिस्ट्री कि एक तो कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, और करो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि द ब्राइट वन इज ऑलवेज राइट. एंड देन टू हैव द करेज टू गो एंड टेल द टीचर कि आपने हमें गलत नंबर दिए. कौन 10 में 10 जाकर के उसको 8 में 10 करा. और अंकल ने इंसिस्ट किया और हम लोगों ने जाके वो किया. तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बचपन की कहानियाँ हैं. अमरूद के पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ना, ला करके अंकल को देना, कटवाना. आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ना, यहाँ इसी लॉन में क्रिकेट खेलना. और ये जो सुर आज बहुत सालों के बाद ये कंटिन्यूअसली इस घर में बजते थे. मैंने शाम को अगर हम लोग आया करते थे तो इन्हीं आवाज़ों से मतलब वेलकम होता था, इस स्वर विहार का. एंड आई थिंक
Uncle is very fortunate to have a daughter like Alka, not because she's my friend, but because of the fact that she's a true replica of her dad. बिल्कुल अपने डैडी की तरह हैं और मुझे लगता है कि ज़िंदगी को जैसे मिल रही है वैसे ही उसको to take life as it comes. And I think that was something which Uncle taught all of us, not to have very high expectations, but to believe in oneself. And today, if I believe in myself, he's equally responsible for that, because he always told me that if you believe in yourself, you'll make a difference. There's still a long journey to go, but I think he's going to be with us all through. Thank you. Thank you for this opportunity. Thank you so much. I think you've stolen words from all of our mouth, because all of us kind of share the same feelings for him. Uncle being really nice to all of us. और हमारे साथ में एक और उनकी कलीग मैं कहूँगा, उनके साथ जो टीचर थी और अलका दीदी की भी टीचर रही माउंट कार्मल में, वो अपने कुछ संस्मरण यहाँ पे हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं। नमस्कार, बच्चों को बहुत